Select the group which shares maximum number of common characters. 2 genera of 2 families, 2 species of a genus, 2 genera of a family, 2 individual of a species. Okay, let's see. B is the correct option and Moksh and Riyanshi is correct. Second question. This is the ratio. 2 pea plant, one with round green seed and another with wrinkled yellow seed produce F1 progeny having round yellow seeds. When F1 plants are self, the F2 progeny will have the following combination. Wait, Maulik, I am showing you 2 more options. See, so here you have 4 options. Okay. Yes, the ratio is 9:3:3:1. Next question. Some dinosaurs had feathers, although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution, this means that reptiles have evolved from birds. There is no evolutionary connection between reptiles and birds. Feathers are homologous structure in both the organisms and birds have evolved from reptiles. मोक्ष बेटा जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर नंबर जरूर लिखिएगा एंड दिस इज फॉर एवरीवन क्योंकि पता नहीं चलता है ना ए बी सी किसका जा रहा है. ओके देखते हैं. Birds have evolved from reptiles. So this is the answer. Now next question is 1 mark question. What is monohybrid cross? आपको आंसर लिखना है इसमें. What is monohybrid cross? Monohybrid cross. Okay. So this is the answer written by Maulik. A monohybrid cross is a genetic mix between 2 individuals who have homozygous genotype. And Akshat cross between 2 reproductive objects and comparing only 1 character, example tallness. So here let's see the answer. The cross which occurs between the parent plant showing 2 alternate forms of a trait. So this is the monohybrid cross. 2 alternate form means capital T and small t. Next question. What are autosomes and sex chromosomes? Autosomes and sex chromosomes. ओके अक्षत ठीक है.
Autosomes are other characters or heredity through by parents, but sex chromosome is defined sex of baby. Autosomes defines other qualities and habits of parents, and sexual chromosomes define sexual characteristic of parent. ठीक है अक्षत, ठीक है रियांशी. Okay, Millie, your answer is sex chromosomes are the chromosomes which determine the sex of the progeny. Rest chromosomes are autosomal chromosomes which determine other qualities. Don't write qualities, which determine the different characters or different traits of the progeny. Quality word is the English word. Like height, color are determined by autosomes. ठीक है, चलो देखते हैं. Human cells contain 23 of pair of chromosomes. Out of 23 pairs, 22 are the autosomal or autosomes, and one pair is sex chromosomes, which determine the sex of the child. Next question. Which of the following scientists give the principle of inheritance? Which of the following scientists give the principle of inheritance? Okay, Mendel. Which of the following is not correct? Correct नहीं है इसमें से. So, okay, I'm reading these three. For every hormone there is a gene. For every protein there is a gene. For production of every enzyme there is a gene. And for every molecule of fat there is a gene. हर चीज के लिए जीन्स ही जिम्मेदार है. Riyanshi is correct. Maulik, no beta. No Maitri. Enzymes are responsible for genes. ठीक है. Protein are responsible for genes. ठीक है. हार्मोन भी जीन्स पे डिपेंड करता है. अगर मम्मी को हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो बच्चे में जरूर आएगा एक एज के पास. फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स, फैट्स होता है हमें बाहर से मिलता है. So yes, very good Divyansh. So the correct option is D, fats. आप जितना घी चुपड़ के रोटी खा रहे हो ये सब जीन्स तो नहीं कर रहे ना, ये आपको हो रहा है. अच्छा, इसमें दिया है फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन. इसमें करेक्ट बताया बेटा. इसमें जो ऑप्शन आएगा द करेक्ट ऑप्शन इज डी. इसमें ये ऑप्शन गलत दिया है क्योंकि इसमें ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. So the not correct आपको बताना है, तो so the correct option is D, not D. According to the evolutionary theory, formation of a new species occur generally due to. ठीक, क्यों evolution होता है, किस कारण से? Sudden creation by nature, accumulation of variations over several generations, clones formed during asexual reproduction, movement of individuals from one habitat to another. Okay Divyansh, okay Riyanshi, ठीक है. So the correct option is B. Oh, you have written D. मुझे ऐसा लगा आपने D लिखा है. Maitri, you are correct. Very good. चलिए, who coined the term gene? Who has given this word gene?
Who coined the term gene? किसने बताया? ओके, अक्षत को नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा देखना बोर्ड पे, सब कुछ आता है, बेसिक पूछ लेगा। वेरी गुड मिनी। मैत्री जॉनसन in 1909 coined the term gene. Next question. What are dominant genes? What are dominant genes? अभी आगे पूछेगा what are recessive genes, तो prepared रहिए। What are dominant genes? छुपा के लिखो एक दूसरे से, आंसर मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हमने नहीं निकाला है F1 जनरेशन दिव्यांश, तो मुझे तुमको डोमिनेटिंग सिखाना है, तो हम कैसे सिखाएंगे? Yes, Millie, very good. This is the correct statement. Which express themselves in homologous and heterozygous both. अपना कैरेक्टर शो करना। Yes, okay, मैत्री। Genes which are able to express their traits. ठीक है, चलिए। Genes which express itself, it is called dominating. Next question. The concept. Homologous and heterozygous. It depends upon the dominating character. अगर dominating दो small t के बीच में क्रॉस कर लोगे, अगर मान लो तुमने ऐसा ये कर लो, ये क्रॉस कर लो, तो आपस में छोटा ही आएगा। ये तो वैसे सिर्फ जरूरत express themselves in homologous and heterozygous trait. Homologous मतलब तो ये हो गया dominating, और heterozygous ये हो गया। अरे अक्षत, पहले मुझे ऑप्शन दिखाने तो बेटा। तुमने मेंडल को मेंडल लिखा, मेंडल। तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं आया। The concept of origin of species by natural selection was given by. Okay, C. Darwin. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, ये है आपका ट्रेड, is crossed with wrinkled yellow seeded pea plant, the seed to be produced in F1 generation. क्या मिलेगा आपको F1 जनरेशन में? क्या मिलेगा आपको F1 जनरेशन में? आपके पास डबल आर डबल वाई है और स्मॉल आर स्मॉल वाई है। आपके पास क्या बाय करते हो? अच्छा, अक्षर विच आंसर बेटा? हाँ दिख गया है, आंसर दिख गया है, क्योंकि ना तुम्हारे फ्रेंड्स लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोगों से डिस्कस करते करते। So the answer is round and green, that is B. हाँ, क्या लिखा है? F1 जनरेशन। बहुत कंफ्यूजन है। The genetic constitution of an organism is called genotype, phenotype, variation, genes. क्वेश्चन नंबर लिखोगे तुम लोग? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो? ओके, जीनोटाइप। नेक्स्ट, राइट
Write the scientific name of the plant on which Mendel carried out his experiment. Scientific name of the plant in which Mendel does his experiment. मैत्री, लिखने का तरीका एकदम गलत है. It's wrong. Spelling is wrong. पाइसम. So अब गलती क्या है वो मैं बताती हूँ. मैंने पहले भी तुमको बताया है, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं देन इट इज पाइसम सटाइवम. तो P जो होगा वो कैपिटल होगा और स्पेलिंग मिस्टेक भी है, और जो S होगा वो स्मॉल होगा. तो दिस इज द पाइसम सटाइवम. ठीक है, पाइसम सटाइवम. ओवम के पीछे जैसे वम लगता है वैसे वम. और आयुष आपका करेक्ट था, लेकिन आपने कैपिटल P नहीं लिखा, इसलिए ये रॉन्ग. और ये बोर्ड में भी ऐसे ही होने वाला है. मिली, मैत्री, आपका भी सेम मिस्टेक है, कैपिटल P. एंड मिली, योर सटाइवम स्पेलिंग इज रॉन्ग. हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म? Human sperm. How many autosomes are present in human sperm? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. समझ गए आप लोग क्वेश्चन? आप लोगों ने ह्यूमन स्पर्म समझ के 0 नहीं बोला या 1 नहीं बोला. ऑटोसोम पूछ रहा है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ. Two pink colored flowers are crossing, result in one red, two pink and one white progeny. So the number of cross is, क्या हुआ? Cross fertilization, self pollination, double fertilization या no fertilization? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए. Two pink colored flowers are crossing, results in one red, two pink, one white progeny. इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? क्रॉस, सेल्फ? ठीक है, देखते हैं, क्योंकि सबने अलग अलग आंसर दिया है. क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, डबल क्या होता है? वेरी गुड. जिसने एक आंसर दिया क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दे आर करेक्ट एंड दैट इज ऑप्शन ए. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप लोग खुद पढ़िए और फिर मुझे आंसर बताइए. Yes, Divyansh. Ma'am, in that question, it was written that two pink flowers are crossed. Ma'am, please go to 16 question. ऊपर जाइए ना मैम. एक मिनट दिव्यांश, कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? वही इसके लास्ट वाला जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन आंसर आया ना, उसके आप क्वेश्चन में जाओ. अच्छा, एक मिनट. मैम नहीं हो रहा, मूव ये. हाँ, अब वो two pink colored flowers are crossing. तो टू पिंक कलर क्रॉस कर रहे हैं मैम, तो उसमें रेड और व्हाइट कहाँ से आ जाएगा? ये बोल रहा है टू पिंक कलर है ना. ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट्स इन वन रेड, टू पिंक एंड वन व्हाइट. ये पिंक कलर भी कहाँ से निकला होगा दिव्यांश? रेड से ही निकला होगा ना. के मिक्सचर से. हाँ, तो उसका पेरेंट जो है वो रेड कलर ही था,
तो कहीं ना कहीं वो आएगा ही प्रोजेनी में। आपको ये कंडीशन लेके चलना है, आप इसको इमेजिनेशन में लेके मत चलो, क्योंकि हम ये जानते हैं व्हाइट और रेड से हमें पिंक मिलता है, तो क्यों आगे जब क्रॉसिंग होगा तो वो रेड मिल नहीं सकता हमें। हम तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पढ़े हैं ना। मैम मेंडल ने जो रूल्स दिए थे उसमें वो बोला था या डोमिनेंट आएगा या रिसेसिव आएगा, इसमें तो दोनों का मिक्सचर भी आ जा रहा है, ये तो गलत चीज है मैम, ये तो उसके लॉ को वायलेट कर दिया। लेकिन जब तुम अभी इसको आगे पढ़ोगे तो तुम देखना कि बोगेनवेलिया फ्लावर जब आया, ये हाँ बोगेनवेलिया फ्लावर में उसका जो कॉन्सेप्ट था वो रेड और व्हाइट का था, जो कि उसको लास्ट में पिंक मिला। तो उसने मेंडल यहाँ पर क्यों गलत हुआ, क्योंकि मेंडल ने जितने भी ट्रेड्स निकाले, 7 ट्रेड, ये मैं तुमको 12th का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मेंडल ने जितने भी 7 ट्रेड निकाले वो सातों ट्रेड सिर्फ पी प्लांट पे थे, ठीक है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाया। बट उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, मेंडल को प्रूव कर दिया कि आपने जितना भी ट्रेड निकाला वो पी प्लांट में था, और वहां तक तो सही था। लेकिन जब अभी तुम ये चीज 12th में पढ़ोगे कि मेंडल को क्यों गलत साबित किया गया, क्योंकि जब ना उन्होंने दूसरे फ्लावर में ये क्रॉसिंग निकाली तब उनको अलग वेरिएशन मिला, तब उनको ना पेरेंट का व्हाइट मिला ना पेरेंट का रेड मिला, तब उनको पिंक कलर मिला। तो यहाँ पर रेशियो कुछ और हो जाता है। यस मैम, मतलब जो पी प्लांट का रेशियो वही था 9:3। यस 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 बेटा, 3:1। उस इसीलिए मैं तुमको, हाँ दिव्यांश बोलो। तो मैम उस हिसाब से तो ये सब क्वेश्चंस आई थिंक नहीं आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पोर्शंस भी कट है। नहीं, ये क्वेश्चन ना सिर्फ इसलिए कि रिवीजन क्वेश्चन है, बट मैं तुमको इसलिए ये करवा दे रही हूँ कि तुम फोकस्ड रहो। और अगर मैं तुम्हारी बायो टीचर हूँ तो मैं तुमको सिर्फ 10th के सिलेबस तक नहीं रखना चाहती, मैं तुमको इसलिए ये चीज क्लियरली बता दे रही हूँ कि मेंडल के 7 कैरेक्टर पी प्लांट में ही क्यों थे, उसके उसके सारे लॉज को आगे चलकर टीएच मॉर्गन, एक साइंटिस्ट है, तुम सर्च कर लेना, उन्होंने उसके लॉ को, टीएच मॉर्गन ना, हाँ टीएच मॉर्गन, उन्होंने उनके सारे चीजों को कॉन्सेप्ट को गलत किया। जब उन्होंने यही चीज बोगनवेलिया में निकाला, मॉर्गन ने बोला कि आप किसी भी प्लांट में निकालेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो उन्होंने बोगनवेलिया उठा लिया और बोगनवेलिया में उनको रिजल्ट इसका बिल्कुल अपोजिट मिला, तो यहाँ मॉर्गन फेल हो गए। फिर उन्होंने डॉर्सोफिला मेलानोगास्टर एक करके इंसेक्ट आता है, जो हमारे घर में जो मक्खियां घूमती है ना उस टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर उन्होंने एक एनिमल उठाया, वो यही वाला एनिमल था, उस पे उन्होंने ये जीन्स को निकाला कि हम, चलो तुम बोल रहे हो कि प्लांट में ये नहीं आ रहा, हम एनिमल में करके देख लेते हैं, तो एनिमल में भी उसके सारे जीन्स अलग हो गए। तो यहाँ जाके मेंडल जो था वो सिर्फ पी प्लांट के 7 कैरेक्टर तक उसने जीन्स को समझा दिया दुनिया को, कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे मम्मी पापा से हमको जो कैरेक्टर्स फॉलो होते हैं, ये मेंडल ने बता दिया कि दुनिया जान गई कि जीन्स क्या होता है। अब इसके आगे का जो भी जीन्स के कैरेक्टर्स हैं वो टीएच मॉर्गन, ग्रिफ्ट, ये लोग आए धीरे धीरे पीछे पीछे, फिर इन्होंने इसको आगे कोर्स को आगे बढ़ाया। तो ये था पूरा लॉ। तुम एक बात याद रखो, अपने दिमाग में इस बात को गांठ बांध लो कि पी प्लांट की जो क्रॉसिंग है वो सिर्फ पी प्लांट की है, वो किसी और के साथ में नहीं जाएगा। ठीक है ना मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच दिव्यांश। सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता था, हाँ, इसमें डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलते। हाँ, थैंक यू। ओके, ऊपर नीचे करना है यहाँ। हाँ, हम इस वाले क्वेश्चन में थे, इसका आंसर बता दो क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से बोर हो गई अब। मैत्री ने बताया है, ओके, ओके, देखते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Mendel proposed that every character is controlled by,
मेंडल के 4 लॉ मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो उसने बताया कि 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स। टू फैक्टर्स। चलो भैया, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये 12th में भी पूछता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल बस नहीं लिखना है आपको, ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल, हाँ। What is the scientist name of human being? Akshat. Sorry, scientist name बोल रही, scientific, yes. Again the writing, Akshat, writing part wrong है। Very good मिली, यही तरीका है। आप लोग आता है लेकिन सब गलत गलत लिख रहे हो। Scientific name of human beings नहीं, आयुष। Again ये मैंने अभी भी बताया तुमको कि जेनेरा एंड स्पीशीज मिलके नाम होता है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, सेकेंड वाले लेटर का पहला लेटर स्मॉल होता है। ये इसका तरीका है साइंटिफिक नेम का। हाँ, यही बोलना तुम बोर्ड पे भी कि हमारे आंसर शीट पे कैप्स लॉक ऑन हो गया। मोक्ष, स्पेलिंग रॉन्ग। The theory of chemical evolution of life was experimentally demonstrated by ओपेरेन, मिलायूरे, मेंडल, डार्विन। चलो ठीक है, देखते हैं, सबने डी लिखा है। मिलर एक्सपेरिमेंट है, मिलर एंड यूरे। इन्होंने क्या किया था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने थोड़ा सा वाटर लिया और वाटर को कुछ दिन तक सड़ने दिया। ठीक है, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है, ये भी क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट है। मैं तुमको अभी छोटे में बता देती हूँ। इन्होंने वाटर को सड़ने दिया, तो जब ये कुछ दिन तक पानी सड़ गया, सड़ने के बाद इन्होंने थोड़े बहुत केमिकल्स डाले, इनका बहुत कुछ इक्विपमेंट यूज हुआ, वो सब जब तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मिलर यूरे ने क्या देखा, जब सड़े हुए पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे, तो उनको पता चला कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ यहाँ से शुरू हुआ है। Genetics is the study of what? Resemblance amongst individual, heredity and environment, differences amongst individual, heredity and variation. Yes, very good. Heredity and variation. Wings of the bird and wings of an insect क्या है? ओए, बता दिया मैंने आंसर। जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस, वेस्टिजियल, बोथ ए एंड बी। अच्छा, ये इसमें आंसर फिर से गलत दिया है ना बेटा, इसमें आंसर बी आएगा, होमोलोगस। सॉरी, बी आएगा एनालोगस। ठीक। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी हेरिडिटी क्या होता है? व्हाट इज हेरिडिटी? यस, ओके दिव्यांश, करेक्ट है।
Yes, Lily, transfer of characters from parents to offspring. The organism pass from one generation. Organism pass, ये क्या है? Moves. Organism निकल लिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या घूम रहे ऑर्गेनिज्म, मैं घूम रही हूँ तो अपने आप आ जाएगा दूसरे जनरेशन। बेटा इंग्लिश नहीं, साइंस। The inheritance of character from parents to offspring. What are the Mendelian factors? ये मैं दिखा देती हूँ। Heredity units which inherit characters from parents to offspring. ये मेंडल का फैक्टर था। मेंडल ने एलील्स नाम दिया, फैक्टर नाम दिया, जीन्स नाम दिया। अब मेंडल, हाँ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing white flower and short pea plant bearing white flower. ये violet है, ये white है। The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as क्या होगा? बताओ, मैं बताओ। Okay, let's see the answer. Option is C. Yes, Ayush, correct है। बाकी लोग का मैं नहीं देख पाई हूँ, देखती हूँ। अक्षत नहीं, C क्यों है? Wait, let me find why it is C. Students, there are only 3 minutes, तो आज हम 26 तक करते हैं। मैं इसका आंसर अगर आज अभी फाइंड करती हूँ और नहीं निकलता है तो हम इसको कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? You also write, you also find this answer. Wait, Akshay. Okay, so students, here Veeram and Ayush, Arihan, they had find out the answer. Tomorrow I'll show you this answer on the screen. ठीक है, उसके बाद हम 27 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा आयुष, ये क्वेश्चन कल वेदांतु में सिखाया गया है, देख लो। मतलब वी आर इन अ गुड लाइन। So students, today I am just keeping my class till here. Any doubt? किसी को कुछ पूछना है?
Tomorrow I'll show this cross. अच्छा, पहले सिखाया है अक्षर, आयुष, ओके, ठीक है. Now I'm leaving here. Thank you so much. Bye.